Hello friends, welcome back to my channel StudyCam Official. So in previous video we have studied about annulenes. Okay, हम उसका complete overview ले लेते हैं एक बार पहले. Annulenes क्या होते हैं? वो completely conjugated monocyclic hydrocarbons होते हैं. Okay, they have general formula CnHn and according to the IUPAC naming conventions, annulenes are named as N-annulenes. Okay, and some annulenes where n is the number bracket indicates the ring size or the number of carbons atom present in the ring. Suppose we have benzene. Okay, suppose we have benzene, then we have 6, then we can name it as a 6 annulene. Okay, we have 4 annulenes, 8 annulenes, so on and so on, 10, 12, 18, 22 and so on. Okay, so we have already seen the structures, their aromaticity, how these are classified, like their aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. We have seen that in the previous video, and so in this video we are going to study about their preparations and their reactions, and we will conclude it at the end of the video. Okay, so let's begin the video. But before that, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and press the bell icon so that you will get the notifications of new video whenever they get uploaded. Let's move into the preparation. Okay, first we have preparations of cyclobutadiene. Okay, which is also called as 4-annuline. Okay, so this cyclobutadiene first synthesized in 1965 by Rowland Pitt. Okay, they could not isolate it, but in 1965 the first stable pale yellow crystalline solid cyclobutadieneroine tricarbonyl was prepared from Fe2 carbonyl 9. Okay, and cis dichlorocyclobutadiene via double dehydrogenation reaction. So this is the reaction showing the formation of cyclobutadiene. From this reaction, the scientists in 1965 they have discovered the formation of cyclobutadiene. So in first reaction we can see that the compound is reacting with the selenium having 4 oxidation number and forming the butadiene. But by trapping the reagents, what happens when the butadiene so when the butadiene is formed by the reaction, and this butadiene can be liberated, or this cyclobutadiene can be trapped with the several unsaturated compounds, which I will be showing in the next reaction. Okay, how it can be trapped by the certain compounds and forming the new products. Okay, since we can see that in second reaction there is a dehalogenation of trans 3,4 dibromocyclobutane. Okay, so from this reaction in the presence of zinc, this ब्रोमीन जो है हट जाएंगे, उसके बाद हमारा टोटली क्या फॉर्म हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाडाइन. बट इन दिस केस ऑल्सो, इन दिस केस cyclobutadiene can be trapped with the several unsaturated compounds. Okay, as we can see that in this reaction, here is the compound which is reactant with CH3CH2OH, which is also called as ethanol, and unsaturated compounds. But when the butadiene is formed, this further can be trapped with this unsaturated reagent. This can be trapped with this unsaturated reagent and forming the दीवार benzene. Further form the दीवार benzene. Mainly होगा क्या, this compound when reacts with this ultimately form the butadiene, but this butadiene can be trapped by the unsaturated compound we have taken in the reagents. So this ultimately form the दीवार benzene, which can also be represented as this. Okay, सो एक और क्या होता है कि अगर हम इस वाले को इस चीज़ से ऐसे रिएक्ट करके ये हमारा बन जाएगा, ट्रैप्ड होके बन जाएगा ब्यूटाडाइन से. बट अगर हम इस सेम अगर हम ये रिएजेंट्स चेंज कर दें, रिएजेंट्स मतलब हमारा रिएक्टेंट यही रहेगा, बट हम रिएजेंट्स को चेंज कर दें. इफ़ वी टेक रिएजेंट्स, ये वाला रिएजेंट अगर ले लेंगे तो सिंपली ब्यूटाडाइन बनेगा, बट हमारा इस टाइप का डेरिवेटिव बन के आ जाएगा. ठीक है, इस टाइप का डेरिवेटिव. अगर हम कोई भी
ट्रैपिंग रिएजेंट नहीं लेते हैं तो हमारा इस टाइप का कंपाउंड और प्रोडक्ट हमारा बन के आ जाएगा, विच जो कि हमारा क्या शो कर रहा है, जो कि हमारा शो कर रहा है कि जो ब्यूटाडाइन है वो डाइमराइज हो जाता है एट 35 केल्विन। ठीक है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे हमारा ब्यूटाडाइन डाइमराइज हो जाता है जब कोई भी ट्रैपिंग रिएजेंट हमारा यूज़ नहीं करते हैं हम। ठीक है, बट अगर हमारा ट्रैपिंग रिएजेंट यूज़ हो रहा है तो ब्यूटाडाइन फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा न्यू प्रोडक्ट में। ये है इसका सिंपली मतलब। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटाडाइन मेनली फॉर्म हो जाएगा हमारा सेरियम 4 ऑक्सीडेशन के प्रेजेंट में, जिंक के प्रेजेंस में, वाया डिहाइलोजिनेशन ऑफ ट्रांस 3,4 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। ओके, जिसमें से ब्रोमीन हमारे रिमूव हो जाएंगे और हमारा ब्यूटाडाइन बन के आ जाएगा। बट इन दिस टू केसेस ट्रैपिंग हैपेंड। ओके, ट्रैपिंग विल टेक प्लेस वाया सर्टेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स which will further produce the new products. ओके, बट अगर हम कोई भी न्यू ट्रैपिंग अगर नहीं होती है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम नहीं यूज़ कर रहे हैं एज अ रिएजेंट, तो हमारी ट्रैपिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से जो ब्यूटाडाइन होगा वो डाइमर्स बना लेगा। ठीक है, और डाइमर्स को किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाएगा, वो 35 केल्विन पे बनाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं सिंथेसिस ऑफ 8 एनुलिन्स। ठीक है, मेनली सिंथेसिस ऑफ 8 एनुलिन्स की रिएक्शंस काफ़ी बड़ी सी है, तो वो मतलब मेनली पूछी तो नहीं जाती है, बट इसका हमें पता होना चाहिए कि होती कैसे है। मतलब होती कैसे नहीं, मतलब हमारे प्रोसेस क्या हैं इसके लिए। तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रोसेस है हमारा सिंथेसिस 8 एनुलिन्स के लिए, वो है रिचर्ड विलस्टेटर सिंथेसिस ऑफ 8 एनुलिन्स। ओके, इसमें क्या होता है, 8 एनुलिन्स को हम क्या करते हैं कि 1357 साइक्लोटेट्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बोलेंगे, बट होगा क्या इसमें 8 एनुलिन में क्या होगा कि ये हमारे फर्स्ट इसने करी थी, जो हमारी फर्स्ट जो रिएक्शन हुई थी इसकी सिंथेसिस के लिए, वो करी थी हमारी रिचर्ड विलस्टेटर ने। ओके, इन्होंने हमारी फर्स्ट रिएक्शन करी थी एट मुनिच इन 1905। ठीक है, रिएक्शन आप देख लो स्क्रीन पे, यही रिएक्शन है। मेनली ये पूछी तो नहीं जाती है, बट हमें अगर इन केस अगर हमें आ गई तो ये हम कर देंगे। मेनली हमें प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि हमारा ये फॉर्म हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है और किसने बनाया था। इसमें 8 एनुलिन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसका सेकंड हमारा मेथड है रैपिड सिंथेसिस ऑफ 8 एनुलिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसिटाइलिन या फिर हम बोल सकते हैं इथाइलिन। ठीक है, अगर रिएक्ट करेगा विद वार्म मिक्सचर ऑफ निकल साइनाइड के वार्म मिक्सचर के साथ एंड कैल्शियम कार्बाइड के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, तो भी हमारा 8 एनुलिन फॉर्म करेगा, 8 एनुलिन बन के आ जाएगा। हमारा ये वाला थोड़ा है कि हम इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा इथाइलिन या फिर एसिटाइलिन अगर हमारा रिएक्ट करेगा अंडर विद अ वार्म मिक्सचर ऑफ निकल साइनाइड और कैल्शियम कार्बाइड। ओके, अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, फिर लाइक 15 बार और 16 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब 15 बार। देखो कंडीशंस हो गई हमारी, हाई प्रेशर और टेम्परेचर देख लो। ठीक है, इस वाली कंडीशंस के अंदर अगर हमारा एसिटाइलिन रिएक्ट करेगा इन सब के साथ, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, 8 एनुलिन। ठीक है, ये हमारी हो गई रिएक्शंस 8 एनुलिन्स के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा सिंथेसिस ऑफ 10 एनुलिन। 10 एनुलिन में क्या होता है कि जो हमारा नैप्थलीन होता है, ठीक है, मेनली हमारा उसी में वही आता है, नैप्थलीन ऑन बिर्च रिडक्शन। आप रिएक्शन देखिए, नैप्थलीन और बिर्च रिडक्शन फॉर्म्स टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या बन रहा है, टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन। जो मेन हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये आएगा, और आइसोटेरिलीन जिसको हम बोलते हैं। तो टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, अगर हम उसको क्लोरोफॉर्म के साथ हम उसको रिएक्ट करवाएंगे और पोटेशियम सॉल्ट के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, सो पोटेशियम सॉल्ट किसका होना चाहिए, टर्ट ब्यूटानोल, और यूजिंग ईथर और इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला देखो 75% हमारा जो है वो है टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन, जो हमारा रिएक्ट करेगा व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टर्ट ब्यूटानोल using ether or ethanol as a solvent at -30 degree Celsius undergoes the
डाइक्लोरोकार्बीन एडिशन, ठीक है। हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बीच वाला जो डबल बॉन्ड है वो रिमूव होके यहाँ पे डाइक्लोरो हमारा ब्रिज में लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम नंबरिंग हम इसकी करेंगे तो दैट कैन बी 11 डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो 4410 अनडेका 38 डाइन, ये आ जाएगा। इसका लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे किसी भी साइड से करेंगे तो यही नंबरिंग आएगी। सो दिस ऑन फर्दर बर्च रिडक्शन फॉर्म्स ट्राईसाइक्लो 4410 अंडर डेकेन, ओके, अनडेका 38 डाइन बाय द रिमूवल ऑफ 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो 40% वाला जो है ना, उसमें हमारा अगर हम रिएक्ट करवाएंगे उसको सोडियम और अमोनिया के साथ अंडर -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, तो ये हमारा क्या फॉर्म कर देगा, हमारा फॉर्म कर देगा 85% हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा। दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 2 क्लोरीन्स विच आर अटैच्ड बाय द ब्रिज। जो हमारा 40% वाले कंपाउंड में बन रहे हैं ना ब्रिज, उसके 2 क्लोरीन हटा करके वो जो कंपाउंड पर्टिकुलरली हमारा बन के आ जाएगा वो होगा। उसके बाद अगर हम उस कंपाउंड को DDQ के साथ हम अगर रिएक्ट करवाते हैं, DDQ क्या है हमारा, 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजोक्विनोन, क्या है 2,3, लिख लो आप, 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजोक्विनोन, ठीक है। वो हमारा मेनली क्या फॉर्म कर देगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा 1,6 मिथानो 10 एनोलिन। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट 85% हमारा क्या बन के आ गया, 1,6 मिथानो 10 एनोलिन। तो ये हो गई हमारी 10 एनोलिन की सिंथेसिस। इसके बाद चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ 14 एनोलिन की तरफ, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ 14 एनोलिन में क्या हो रहा है, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ 14 एनोलिन दैट कैन बी डन बाय कपलिंग, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हमारी कपलिंग हो रही है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कपलिंग हो रही है पॉलीइन की। ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट क्या है, ये हमारा पॉलीइन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी इसकी कपलिंग हो रही है, सिंपल सा है, इसकी कपलिंग हो रही है और ये हमारा बन जाएगा 14 एनोलिन, ठीक है। इसके बाद बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा क्या हो रहा है, इसमें पॉलीन की कपलिंग हो रही है किस पे, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक एसीटेट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक एसीटेट, ठीक है, क्यूप्रिक एसीटेट की प्रेजेंट में और पाइरिडीन की प्रेजेंट में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पिरिडीन, ठीक है। इन दोनों के प्रेजेंस में हमारी क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है। इट रिजल्ट्स इनटू द साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग 2 एल्काइन, ठीक है। ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग 2 एल्काइंस ग्रुप विच फर्दर ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम टी ब्यूटॉक्साइड। फर्स्ट हमारा इसमें ले लेंगे पोटेशियम टी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, पोटेशियम लिख लेना, टी ब्यूटॉक्साइड मतलब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और सेकेंड हम ले लेंगे टी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और H2 पैलिडियम कार्बन, ठीक है। हमें इसकी प्रेजेंस में जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड बन के आया वो इसकी प्रेजेंस में हमारा फर्दर क्या बना देगा, हमारा एनोलिन बना देगा विच इज़ 14 एनोलिन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रिपरेशन आता है 18 एनोलिन का। ये काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, इसको कर लेना। हमारा आता है, उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ 18 एनोलिन्स का। 18 एनोलिन्स में क्या होता है, दिस इज द सिंथेसिस इन्वॉल्व कपलिंग 3 मोल्स ऑफ, इसमें भी कपलिंग होगी, ठीक है। देखो 14 वाले में और 18 वाले में दोनों में कपलिंग है। इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व्स द कपलिंग ऑफ 3 मोल्स ऑफ हेक्सा 1,5 डाइन, ठीक है, हेक्सा 1,5 डाइन, ठीक है। ये हमारा हेक्सा 1,5 डाइन है, तो इसके हमें 3 मोल्स लेने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक एसिटेट, ठीक है। ये हमारा क्यूप्रिक एसिटेट हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक एसिटेट और इन पाइरिडीन या फिर पिरिडीन टू गिव्स अ साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक ट्राइमर हमारा क्या बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया साइक्लिक ट्राइमर। तो ये उसके बाद क्या होगा, ये हम स्ट्रक्चर 2 मान लेते हैं। दिस स्ट्रक्चर 2, ओके, दिस साइक्लिक ट्राइमर अंडरगोज द रीअरेंजमेंट। ये हमारा साइक्लिक ट्राइमर हो गया, ये रीअरेंज होगा, ठीक है। इट अंडरगोज द रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ
in the presence of tertiary butahydroxide. Okay, this undergoes the rearrangement in the presence of tertiary butahydroxide और हीटिंग, हीट भी हमें इसको देनी पड़ेगी. फिर ये स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरह का, थर्ड वाला बन जाएगा स्ट्रक्चर, विच इज ऑल्सो कोल्ड एज 1,7. इसका नेमिंग हम अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 1,7,13 ट्राई डाईहाइड्रो 18 एनोलिन. ठीक है, ये बोल सकते हैं हम इसको. उसके बाद विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स ऑन, अब इसकी पार्शियल हम इसकी क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे. इसकी पार्शियल रिडक्शन कैसे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन. हमारी रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन और पैलिडियम, तो वही कर देंगे हाइड्रोजन पैलिडियम के साथ. ये सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे, हाइड्रोजन और पैलिडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट लेके विद बेंजीन. ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन भी आ जाएगा. इनकी बेंजीन की प्रेजेंस में हमारा ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो हमारा है 18 एड्रेलिन. ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी प्रिपरेशन, हमारी ब्रिज हेडेड एनोलिन्स की. ब्रिज हेडेड एनोलिन्स कैसे बनते हैं, ये हमारा वही है, वही वाली रिएक्शन है जो उसकी है, क्या बोलते हैं, नैप्थलीन वाली की. ठीक है, 10 वाला जो एनोलिन मैंने वहाँ पे रिएक्शन दिखाई थी ना, वही सेम रिएक्शन है. ठीक है, इसमें क्या होगा, नैप्थलीन है, सोडियम और अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेगा, स्ट्रक्चर्स बना लेगा आगे वाले. उसके बाद वही सेम रिएक्शन है, बिल्कुल DDQ के साथ जाके बना लेगा. उसके बाद वही सेम रिएक्शन है, मैं इसको छोड़ देती हूँ. ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है ये हो गई हमारी सिंथेसिस. अब हम करेंगे रिएक्शंस इनकी. ओके, इसमें क्या है ना, हम रिएक्शंस करेंगे 4 एनोलिन्स की और 6 एनोलिन्स की. ठीक है, बाकी जो रिएक्शंस हैं उसमें इतना कुछ है नहीं. ठीक है, उसमें जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है ना, कि हमारा एंटी एरोमेटिक क्यों होता है, एरोमेटिक क्यों होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो ज़्यादा मेन हमारे रहेंगे. और हमारा 10 एनोलिन्स का जो रिएक्शन वो था, वो भी हम कर सकते हैं, जैसे बता दिया था मैंने, बट हम कर सकते हैं उसको भी. और सिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अब देखते हैं इसकी रिएक्शन. तो 4 एनोलिन्स में क्या होता है ना, ब्यूटाडाईन होता है हमारा. ठीक है, तो ब्यूटाडाईन फर्स्ट रिएक्ट करेगा हमारी नॉर्मल इथीन के साथ. ईन के साथ कोई भी ईन हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो मेनली हमारा क्या होता है कि जो ये 4 एनोलिन्स होते हैं वो डाईएल्डर प्रोडक्ट देते हैं. डाईएल्डर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, मेन ऑब्वियसली सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, बट ये एक नेम रिएक्शन भी है. ठीक है, डाईएल्डर्स करके रिएक्शन करके एक नेम रिएक्शन भी है, वो आगे फर्दर बता दूंगी. बट इसमें ये है कि हमारा जो ये है हमारा ब्यूटाडाईन है, वो रिएक्ट करेगा ईन्स के साथ. ठीक है, एंड द रिएक्शन ऑफ इथाइलिन एंड ब्यूटाडाईन फॉर्म्स अ बाइसाइक्लिक 2,2 हेक्सा 2-ईन. ठीक है, ये तो दे देगा, ब्यूटाडाईन दे देगा, बट वही बताया था ना कि ट्रैपिंग हो जाती है रिएजेंट्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से ये हमारा क्या दे देगा, बाइसाइक्लिक 2,2 हेक्सा 2-ईन. ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा फर्दर फॉर्म हो जाएगा ट्रैपिंग और रिएजेंट्स की वजह से. सेकेंड हमारा है रिएक्शंस ऑफ साइक्लोब्यूटाडाईन विद साइक्लोपेंटा-1,3-डाईन. ठीक है, ये है साइक्लो-1,3-पेंटाडाईन. इसकी रिएक्शन अगर हम ब्यूटाडाईन से कराते हैं, ये सेम उसकी तरह ही डाईएल्डर्स वाला प्रोडक्ट हम इसको ला के दे देगा. ठीक है, अब हमारा क्या आ जाता है, थर्ड हमारी रिएक्शन हो जाती है, अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं, अगर हम ब्यूटाडाईन को रिएक्ट करवाते हैं एलीन्स के साथ. एलीन्स क्या होते हैं हमारे, जिसमें डबल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव नहीं, कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड्स होते हैं. दिस टाइप्स ऑफ इस तरह के जो कंपाउंड्स हो गए, जैसे ये हो गया हमारा एलीन्स. अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ब्यूटाडाईन के साथ, तो ये हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड दे देगा, ये इस तरह से. ठीक है, एक रिएक्शन हम इसकी ये भी कर सकते हैं, दिस कैन बी थर्ड. ठीक है, तो जब हम एलीन्स को रिएक्ट करवाते हैं ब्यूटाडाईन के साथ, तो ये हमारा इस तरह का कंपाउंड दे देता है, जिसको हम कह सकते हैं 5. इसका जो अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5-मिथाइलीन बाईसाइक्लो 2,2-0 हेक्स 2-ईन. ठीक है, 5-मिथाइलीन बाईसाइक्लो 2,2-0 हेक्स 2-ईन.
ये इस तरह का कंपाउंड अगर हमें दे रहा है तो ये भी डाई एल्डर्स का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। डाई एल्डर्स आई होप आपको आती होगी। मैकेनिज्म पार्ट्स में नहीं करा रही हूँ बिकॉज इतना हमें इसमें डीप में नहीं जाना है, इसका हमें ओवरव्यू ही लेना था और हमें इसका यही देखना है कि इसके रिएक्शंस क्या है, मेनली रिएक्शन क्या है। इस मैकेनिज्म में इतना घुसना नहीं है क्योंकि हमें केमिस्ट्री का कोई एग्ज़ाम नहीं है हमारा, यूपीएससी का है तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा 6 एनोलिन्स की तरफ, ठीक है। तो 6 एनोलिन्स में हमारा आ जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन्स क्या होते हैं, 6 एनोलिन्स होते हैं, ये दीज आर वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड दीज आर ऑल्सो हाईली अनसैचुरेटेड, ओके, हाईली अनसैचुरेटेड, बट इट डजन नॉट अंडरगो एनी ऑफ द रेगुलर रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। कोई भी नॉर्मल एल्कीन होता है उसकी जो नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं उसमें ये नहीं जाता, ठीक है। नॉर्मल एल्कीन जो होगा वो कोई भी रिएक्शन दे देगा, जैसे कि हम ऑक्सीडेशन ले लेते हैं KMNO4 से या फिर Br2CCl4 से हम इसके हैलोजिनेशन करवा सकते हैं, कोई भी एल्कीन की करवा सकते हैं ना, हाइड्रेशन करवा देते हैं H2O या H3O पॉजिटिव लगा के। तो ये जो है वो नॉर्मल एल्कीन्स वाली रिएक्शंस नहीं देता। ये क्या करता है कि अगर हम इसको इसके साथ करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, हैलोजिनेशन नहीं होगी नॉर्मल Br2 के साथ, और ऑक्सीडेशन नहीं होगी अगर हम KMNO4 को ले लेंगे तो, और हाइड्रेशन इस तरह से नहीं होगी। बट ये है कि अगर हम इसमें एडिशन नहीं होती है, देखो हाइड्रोजन और निकल को हम अगर लेते हैं तो इसमें ये स्लो एडिशन हो जाती है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसकी वजह से हमें साइक्लोहेक्सेन दे देता है, ठीक है। ये हमारी इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज़ हो गई, हम इसको प्रॉपर्टीज़ मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, कुछ रिएक्शंस इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बिल्कुल बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट बना दिया है इसका, जिससे आपको याद करने में ना इजी रहे, ठीक है। तो आपको बहुत इजी लगेगा। फ्लो चार्ट दिख रहा है, मैंने ये टेलीग्राम चैनल में इसकी पिक्चर भी भेज दी है, ठीक है। तो आप वहाँ से ले लेना अगर यहाँ पे आधा आधा भी दिख रहा होगा। तो मेनली हमारा ये बेंजीन हो गया बीच में, ठीक है, बेंजीन है हमारा। देखो फर्स्ट इसकी रिएक्शन होगी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हमारा बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, ठीक है। ये मेनली नॉर्मल सी रिएक्शन है, बहुत ईजी रिएक्शन है ये, हम 11th-12th में भी पढ़ते हैं ये वाली रिएक्शंस। ब्रोमिनेशन, अगर ब्रोमिनेशन हमें करवानी है तो क्या करें, Br2 लगा देंगे लिक्विड फेज में एंड FeBr2, हम इसको FeBr2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसके बाद हमारा ब्रोमोबेंजीन बन के आएगा। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन करवा देते हैं जैसे मैंने पहले दिखाया था तो हमारा ब्रोमीन नहीं अटैच होगा, हैलोजिनेशन नहीं होगी, ठीक है। हमें इसके लिए पर्टिकुलरली ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr2, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन हो जाएगी बेंजीन के लिए हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, जिसकी वजह से रिडक्शन, इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, जो मैंने पहले ही बता दी थी, रिडक्शन होगा H2 निकल के साथ। अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें साइक्लोहेक्सेन बना के दे देगा। उसके बाद रिएक्शन आ जाती है हमारी फ्रीडल-काप्स रिएक्शंस आ जाएंगी, एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन, ठीक है। फर्स्ट एसाइलेशन ROCl और RCO2O के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो ये हमें क्या दे देगा, फिनाइल एल्कानोन, और हमारा क्या बेंजीन पर अटैच हो जाएगा, COR, क्या अटैच हो जाएगा, COR, ओके। और उसके बाद अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की ही प्रेजेंस में, बट एल्काइलेशन हमें करवानी है, RCl एल्काइल और हैलोजन एल्काइलेशन, ठीक है। तो अगर हम इसकी एल्काइलेशन करवाएंगे तो H जो है हमारा यहाँ पे, H जो है हमारा Cl लेके HCl बना के भाग जाएगा और R हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगा H की जगह पे, तो ये हमें क्या दे देगा, एल्काइल बेंजीन। इसके बाद रिएक्शन आती है हमारी नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन हमारी HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रोबेंजीन हमारा दे देगा। दीज आर द सिंपलेस्ट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ओके। और आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी सिंपलेस्ट रिएक्शन अगर किसी की होगी तो वो बेंजीन की होगी, ठीक है। फर्दर हमारी क्या है, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रोमिनेशन में क्या किया था, FeBr2 लिया था, यहाँ पे हम लेंगे AlCl3 और क्लोरीन गैस ले लेंगे Cl2 गैसियस फेज में, which gives chlorobenzene. These are the simplest reactions of benzene.
ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शंस। ठीक है, ओके, तो फिर अब आगे हम बढ़ते हैं और रिएक्शन देखेंगे हम। देखो 10 एनुलीन की रिएक्शन जो है ना वो टब शेप, एक दो तरह की रिएक्शन होती है उसमें, वो इतनी कुछ खास नहीं है। मतलब इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं PDF एरोमेटिसिटी वाला, उसमें आप पढ़ोगे ना वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें। और आगे फर्दर हायर एनुलीन्स की रिएक्शंस हमको पढ़नी नहीं है। इसका अब आ जाते हैं हम समरी पार्ट पे। ठीक है, तो अगर हम समरी देखें तो समरी से हमें क्या पता चलता है, एनुलीन्स क्या है। एनुलीन्स हैं हमारे कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको रट जाओ उंगलियों पे। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये तो पता ही होना चाहिए। एनुलीन्स अगर आ रहा है दैट, तो हमें ये शब्द पता होने चाहिए कि एलुनीन्स है तो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होगा और मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा जनरल फॉर्मूला CN एंड HN, CN और HN+1। अगर CNHN है तो हमारा N जो है इवन नंबर होगा हमेशा, और अगर CNHN+1 है तो N हमेशा हमारा ऑड नंबर होगा। ये भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी से याद करना है। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि 4 एनुलीन, 6 एनुलीन, 9 और 8 एनुलीन जो है ये हमारे सिंपलेस्ट एनुलीन्स हैं। ठीक है, इसके जो हम इसको एनुलीन्स तो कंसिडर कर रहे हैं, बट इनके हमें नाम भी तो पता होने चाहिए। हमने तो पता है कि हाँ 4, 8, 6, 12, 10 ये हमारे एनुलीन्स होते हैं, बट इनको और भी तो क्या कहते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। सो 4 एनुलीन्स ऑल्सो कॉल्ड एज 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, जो मैंने बताया था ब्यूटाडाइन, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, 6 एनुलीन्स हमारा हो गया बेंजीन, 8 एनुलीन्स हो गया 1,3,5,7 साइक्लो टेट्राईन। इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ये डबल बॉन्ड्स। ठीक है, 8 एनुलीन्स हमारा आ गया 1,3,5,7 साइक्लो टेट्राईन है। ठीक है, अब देखो एनुलीन्स तो हमें पता चल गया। अब 10 भी है, 11 और 12 भी है, उसके बाद 14, 16, 22, इन सबका देखो सिंपलेस्ट 3 हमें पता होने चाहिए। बाकी तो हम आगे उसका एक्सप्लेनेशन करना ही है हमको। ठीक है, इनका नाम कैसे लिखे जाता है, इसमें नाम होता है आईयूपैक नेमिंग कन्वेंशंस। इसके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली इसी के लिए बनाए गए हैं, जिसमें कि N जो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और उसके बाद एनुलीन्स दिखा जाता है। और N हमारा कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे रिंग में। हमारी कोई रिंग बन रही है, जैसे इसमें हमारे 8 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 4 हैं, तो यहाँ पे N जो है हमारा नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एनुलीन्स हमारा नॉर्मल है ही। ठीक है, इस तरह का हो गया। अब ये हमारा क्या करता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पूरा समझाया था कि एरोमेटिक कौन सा हो सकता है, नॉन एरोमेटिक कौन सा हो सकता है और एंटी एरोमेटिक कौन सा हो सकता है। अब यहाँ पर भी मैंने एक बार लिख दिया है कि 4 एनुलीन जो होगा हमारा वो एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है, बट 4n+2 पाई वाला रूल, हकल्स रूल जिसको बोलते हैं, वो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें कैसे फॉलो होगा वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब वो फॉलो नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो एंटी एरोमेटिक बन गया, क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज तो हैं बट हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो एंटी एरोमेटिक हो गया। 6 एनुलीन्स हमारा हो जाता है एरोमेटिक बेंजीन विच इज़ हाईली अनसेचुरेटेड, एंड हमारी एरोमेटिक की डेफिनेशन ही उसी से आ जाती है। 8 एनुलीन्स हो गया 10, 12, 14, दिस ऑल आर नहीं, इसमें से 8 और 10 वाला जो है वो नॉन एरोमेटिक है हमारा। 8 और 10 वाला हमारा है नॉन एरोमेटिक। इसमें 2 ही हमारे नॉन एरोमेटिक हैं और हमारे 2 हमारे इसमें एरोमेटिक हैं। बेंजीन हो गया और 18 वाला हो गया। ठीक है, 6, ओके, ये हमारा एंटी एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब जो ब्रिज हेडेड कार्बन्स हैं, ब्रिज हेडेड 10 एलुनीन्स हैं हमारे, वो एरोमेटिक हैं,
जिसमें से हमारे ये हुए गए, फर्स्ट है हमारा 9-10 मीथाइन 10 एनुलिन्स, 9-10 ऑक्सा 10 एनुलिन्स, 9-10 एजा 10 एनुलिन्स। ठीक है, 10 एनुलिन्स मतलब इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया था, इस तरह का बन जाएगा। जैसे नैप्थलीन होता है ना, उसमें एक ब्रिज हेडेड, ये यहाँ पे ब्रिज है, ये इस तरह का मीथेन हो जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सा, थर्ड में हमारा एजा नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनुलिन्स कंप्लीट। अब देखो इसके ना कुछ इस तरह के थ्योरी के नोट्स हैं जो मैंने यहाँ तो समझा दिए हैं। थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपको वो पीडीएफ में से करना पड़ेगा। पीडीएफ जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करी है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन भी करना है उसको। ठीक है, और हम इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। और इसके जैसे फ्लो चार्ट मैंने अभी बेंजीन का बनाया तो मैं वहाँ पर भी अपलोड कर दूँगी। इन केस अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, इसके नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आई नो मेरी ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़, so I will be regular for sure. Okay, so thank you.